Hello and welcome. You're watching Live Report with me, Shavan Sen, the show that sets the agenda for the day. This afternoon, I come to you with three big stories of the day. But first, let me take you through the headlines we are tracking at this hour. Days after Janakpuri biker's death, another man dies after falling into open drain in Delhi's Rohini. Dwarka court now seeks status report from Delhi police. Delhi police attempts to cover up the case, says the man was intoxicated during the incident. Republic accesses another clincher video of Kanpur Lamborghini crash, accused Shivam clearly seen at the wheel. Three days on, Kanpur police yet to arrest tobacco baron's son Shivam Mishra in connection with the Lamborghini crash. Bail plea and application for release of car filed in court. Weeks after the Baramati aircraft incident, family members claim conspiracy in Ajit Pawar's plane crash. Ladies and gentlemen, I'm starting the live report with the story coming in from the national capital, where back-to-back cases of criminal negligence have been reported. First, it was Yuvraj Mehta, who died in Noida after drowning in a ditch. Then it was Kamal Dhyani in Janakpuri, dead after his bike fell into an open pit. And just 4 days after that, another youth, Birju Kumar, dead after falling into an open sewer. The open sewer that claimed Birju's life reportedly belongs to DDA in terms of the maintenance. It is DDA which carries out the maintenance, and locals have essentially claimed that it was left open. And after it claimed one life, the administration has now covered it. Another clear case of civic apathy, of criminal negligence. I'm going to just quickly take you through. Over the last few days itself, multiple incidents have taken place and one same pattern. The pattern is of clear negligence on the part of authorities. On your screens right now, this is the story of Yuvraj Mehta, who was returning from his day's work in Gurgaon, and he drowned in an open pit. 6th of February, Janakpuri, it is the same case. If I can just go back to the graphics of 6th of February, when you've had another life being claimed, and of course the recent being 10th of February when Birju Kumar fell into the manhole. And the first response that actually came in from the Delhi police was that the man is actually intoxicated and that is why he fell into the pit. But there is no answer as to why was the drain left open. On your screens right now, the story of three individuals and the reflection of our current system. The system which has led to the death of three young lives. Yuvraj Mehta, Kamal Dhyani, and now yet another incident taking place in Rohini. In fact, we're going to play out a full report coming in from Rohini explaining what really happened and why the Delhi police was in a tearing hurry to come to a conclusion that the man was intoxicated and that is the reason why he fell inside the drain. And there was no answer as to why it was left open in the first place itself. Let's first play out this report coming in from Rohini. कुछ हमारे साथी यहाँ से गुजर रहे थे और हमारे को इन्फॉर्मेशन 6-7 बजे जब मैं यहाँ पे मौके पे आता हूँ, 6:30-7 बज रहे थे और देखा कि पुलिस का सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी था और दिल्ली पुलिस स्टाफ यहाँ पे जारी था, उनको इसमें ढूंढ रहे थे और हमें कुछ शक हुआ कि इसमें किसी ना किसी की जान गई है। तो बिरजू के साथ वाला जो लड़का था, हमें चंद मीटर की दूरी पे हमें मिलता है और हम उनसे पूछताछ करते हैं। हमने बोला यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने बोला मेरा साथी बिरजू इस गड्ढे में गिर गया है, दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है उसको। और मतलब ये तो बहुत दर्दनाक बात है। एक सीवर में एक व्यक्ति गिर पड़ा है, आप जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाओ। तो मैं और तेजपाल यादव जी हम तुरंत वहाँ से आते हैं
और वहाँ पे हमारे सभी आके धीरज भाई, हम जब नहीं यहाँ पे आके जब हम देखते हैं कि शीवर, ये जो आप शीवर का ये ढक्कन देख रहे हो, ये ढक्कन बाद में लगाया गया है, इसकी वीडियो भी है हमारे पास, सारी ढक्कनें खुली हुई थी यहाँ पे। जब इस ढक्कन को यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे प्राइवेट टैंकर लगे हुए थे, उससे पानी को निकाला जा रहा था। और जब हम यहाँ पे आके इसकी वीडियो बनाने के लिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो व्यक्ति वो हमें वहाँ से हटाया जा रहा है कि किसी तरह से। तो भी हमने अपने लोगों को सोशल मीडिया पे हमने सभी को बताया कि सभी इकट्ठा, क्यों किसी के परिवार के साथ अगर किसी का बच्चा अगर ख़त्म हो जाता है तो उस दुख दर्द को हम समझ सकते हैं। Saurav is joining us from Rohini where the incident took place. Saurav, Delhi police first response was that the man was intoxicated and that is the reason why he fell into the drain. You've spoken to the locals there who have essentially complained about the fact that this sewer line was kept open for quite some time and they've closed the drain only after the incident has taken place. First, a quick report of what you know so far. Yes, Shravan, at the spot we are here and the locals have claimed that all the manholes in this area were open for the past 2 years and there were no action by the authorities. Now, after a man fell into this manhole and lost his life, the DDA has covered all the manholes at the incident spot only in just 2 hours. But they couldn't do it in the past past 2 years. See, these kind of manholes are at the spot and see, now it is covered with a lid. But earlier, all the manholes were open. And apart from these manholes, see, you can see that there is a drain also, which is still uncovered. And it is a deep. And apart from that, the locals claim that these manholes are nearly 14 feet deep. And because of that, they were all filled with the heavy water. And due to this, the 32-year-old Birju Kumar fell into it and lost his life. And after nearly 30 hours, the police got to know about this incident. And now they have recovered the body. And they have sent to the private hospital and for the post-mortem. And now the investigation is still going on. But the police is saying that the person was intoxicated. So they are trying to spin it and they are putting all the blame on the disease itself. They are saying that the intoxication is the major reason due to which that person fell into the pit. They are not saying that this DDA manhole was uncovered. There was no lid and this is a complete criminal negligence. They are trying to cover it up. Since morning, no DDA official has visited this site to check and investigate how many manholes are here and how many of them are uncovered. And I'll tell you that the local MLA who holds the post of the social welfare minister he also didn't visit the spot. And the locals claim that after getting the cabinet ministry in the Delhi government, he do not talk to the people and he do not interact with them. And there is no one with whom he can share. Well, thank you very much, Saurav, for getting us the latest details. In fact, as Saurav has been reporting, that this is about yet another incident that has taken place in the national capital. Shifting focus now to the criminal negligence in Kanpur. It's the story of a VVIP brat who did think that he would actually get away. And that's exactly what has happened with tobacco baron's son, Shivam Mishra, who was behind the wheels driving a luxury vehicle, rams into an auto rickshaw, and not just that, also a motorbike. And then there is a defense that is created. The defense is that he was not behind the wheels, typical of what we have seen in the past. In fact, the latest image that has been accessed by Republic TV clearly goes on to indicate that Shivam Mishra was actually behind the wheels. Also, the myth that was basically created, the lie that was created by the defense lawyers have now been busted by multiple videos that have been accessed by Republic TV. I want to first take you through that latest image accessed by Republic TV where you would see him behind the wheels. First, the clear similarity in both the cases. What happened in the Porsche case in Pune and in Kanpur. As far as Kanpur is concerned, the luxury car was being driven by yet another
tobacco baron's son, injures 6 people. Accused son then is not questioned by the police, similar to what we had seen in the past as far as the Pune Porsche case is concerned. Here, in fact, the Kanpur police goes to the residence of the accused and pleads before the accused that his statement has to be recorded. Failing to do so, the team basically returns. Initially, his name does not even figure in the FIR that was registered by the Kanpur police. 60 hours and there has been absolutely no arrest that has been made in the Kanpur case. I want you to first take a look at this particular video accessed by Republic TV. ये गाड़ी हमारे ऑटो में ठोक देने हटा भैया ये लैम्बोर्गिनी मेरी ऑटो में ठोक देने निकाल इसको बाहर नहीं चलेगी आंटी जी नहीं चलेगी हमारे साथ कांड हुआ है ना हमारे ऑटो पे नहीं ऑटो में हमारे सब पीछे बुला डाले देखते ही आ रहा है हेलीकॉप्टर बना देना कोई नहीं भाई सब कुछ आ जाना भेजा है चले गए मन किसी को चोट आई है ये गाड़ी हमारे ऑटो में ठोक देने हटा भैया Well, in fact, the claim that was made by the defense lawyer was that Shivam was not behind the wheels. Attempt that was made to put the blame on a driver. In fact, from these videos that have been accessed by Republic TV, it shows that the bouncers arrived at the spot, took him away from it, pulling him from the driver's seat. Let me go across to my colleague Shivam, who's joining us from the newsroom. Shivam, just walk us through the details of each of these videos that have been accessed by Republic TV, which goes on to indicate that Shivam Mishra was actually behind the wheels. Definitely, Shravan. So we were the first channel to show each and every video. We confronted the SHO, we confronted the police commissioner in this case also. Now, the first question that we asked was the criminal delay. Why was a blood test not done in the case? Now, let's come to the cover-ups that were being tried by everybody, including the delay which was happening here. Now, there was clear video evidence in the first case when you saw the bouncers who took out Shivam Mishra from the Lamborghini, and as per the eyewitness, because it was alleged that he was driving in an intoxicated state, and that's why he rammed into pedestrians and also the parked vehicles in that locality. Now, more evidence came after the police shared another CCTV footage, another CCTV video, where one can clearly see the Lamborghini being driven by Shivam Mishra itself, because it's a two-seater Lamborghini and you can only find one person seated on the driving seat. So that was the other video that we saw. And coming
coming to the another video, which is this video also, even in this video, it's clearly evident that there's only one person in the driving seat, which is Shivam Mishra. And it's clearly evident the bouncers were trying to cover up the whole incident. And it's clearly a case of cover up because firstly, there was delay. We confronted even the bouncer. We reached the home of Shivam Mishra. And the father also came to the police station. Now, he cooked up a very new story. He said that Shivam Mishra, he had some problem. He was unwell. He felt unconscious or something like that. And that's why he was pulled out by the help of the bodyguards who were escorting him. So he gave a new angle to that. Now, he also said that Shivam has been sent to Delhi for treatment. Now, there are many cover-ups in this situation. Now, because of continuous coverage of Republic Network, the police had to include him also because earlier there was no mention of Shivam Mishra in the FIR also. Now, clearly we pointed out why has the name of Shivam Mishra not been kept in the FIR also, no complaint against him, no arrest also. And till now, he has not been arrested. The case has to be heard today. So many developments here and clearly a criminal negligence at play and also a trial of cover-up of the entire incident which was happening in Kanpur, the 10 crore Lamborghini crash case, which clearly shows Shivam Mishra being at the driving seat, being the driver of the car. Nobody else was assisting him. Even if the bodyguards were with him, they were only escorting in another vehicle. So there was no driver. The lawyer cooked up another story. He said that he was not driving. There was another driver who was assigned and he was pulled out from the other seat because he was not well. So it's completely a case of cover-up. It's just like an old movie. It comes out like from an old movie script. Right. So I get your point, Shivam. I just have to move on. There's more breaking news now coming in. In fact, 60 hours on and there is no FIR that has been registered. Shifting focus now to the other big development taking place this afternoon in the national capital where NCP Sharad Pawar faction leader Rohit Pawar has landed in the national capital. This comes after he made a serious allegation with regards to the incident that took place in Baramati, where Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar lost his life. In fact, he has raised questions about last-minute changes in the pilot's roster is concerned and also about the pilot who was on board, who's had a previous history of reporting to work in an inebriated state. This is what Rohit Pawar has to say. Listen. यहाँ पे आपको मिलती है आगे। अभी ये जो विजय कुमार सिंह है उसका स्टेटमेंट था that the aircraft was well maintained, pilot were experienced, accident likely occurred due to visibility issue. ये इनका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ही कुछ गलत है और विजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। अभी ये लोकल व्यक्ति है जो बता रही है मराठी में कि जो विमान का साउंड है, एक गांव है, गांव के ऊपर से रोज एयरक्राफ्ट वहां पे ट्रेनिंग के जाते हैं या नया कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो ऊपर से जाता है तो लोगों को मालूम है। उनका कहना है इस स्टेटमेंट के माध्यम से जो प्लेन दादा को लेके घूम रहा था, बिकॉज उन्होंने एक राउंड अबाउट भी लिया था तो उसका आवाज बहुत अलग था, गलत था और वो एयरक्राफ्ट बहुत लो था यूजुअल टाइम के हिसाब से। आगे ये एयरक्राफ्ट का वीडियो है जो आप सबने देखा होगा। ये चल रहा है, ये स्टॉल हुआ, उसके बाद 9 से 11 सेकेंड में वहाँ पे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। जो आपको पाठक को पायलट है उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा, ओ शिट, वो शायद जब स्टॉल हुआ था एयरक्राफ्ट उनको कुछ पता चला होगा या स्टॉलिंग मैन्युअली भी हो सकता है सर्किट ब्रेकर के माध्यम से। तो शायद अगर मेन पायलट ने वो किया होगा या कुछ हो गया होगा या मैकेनिकल एरर आया होगा, उसके बाद कोई भी एक्सपर्ट हो उसको एक फील आता है ये होने के बाद इस हाइट पे, इस लेवल पे 100% क्रैश होता है। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो अपने जान की परवाह करता है उसका एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन पाठक मैम का था, को पायलट का, जहाँ पे उन्होंने ओ शिट करके 9 से 10 सेकेंड में वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। हमारा ऑब्जेक्शन पाठक जो को पायलट है उन पे नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन आगे जैसे जाओगे वो ऑब्जेक्शन है द मेन पायलट मिस्टर कपूर। आगे अभी ये है कि व्हाट फेलियर ऑकर्ड, मतलब ये मैकेनिकल एरर क्या था वो देखने की जरूरत है, इसलिए द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी गुड। उसी के बाद जो भी एयरक्राफ्ट अगर कहाँ से भी आता है तो उसका चेकअप करना पड़ता है।
फ्लाइंग करने के पहले उसकी हेल्थ, जो मेंटेनेंस हेल्थ होती है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट वायर्स है, केबल्स है, हाइड्रोलिक्स है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है, हर रोज चेक करना पड़ता है बिफोर द एयरक्राफ्ट फ्लाइज। दिस इज नॉर्म गिवन बाय DGCA। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या आप जस्ट पायलट हो या मैकेनिकल व्यक्ति हो या ऑपरेटर हो, आपको ये चीज़ें देखनी ही पड़ती है। जो ये टेक लॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर किसका सिग्नेचर था, रूटीन मेंटेनेंस किसने किया था, हेवी बेस करने वाले उनके मैकेनिकल जो एक्सपर्ट्स है वो कौन है जो सिग्नेचर कर, इस सब विषय के लिए एक सिग्नेचर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में देखने की जरूरत है, ऐसे हम सबकी मांग है। अभी ये है 2023 में 14 सितंबर 2003 में ये जो एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, उसका एक फुटेज है। अगर आप देखो तो फ्लैट रनवे है, वो प्लेन वहाँ पे, वो भी लेयर जेट का था 45XR, थोड़ा सा बड़ा वहाँ पे था। तो अभी अगर आप देखो तो वहाँ पे ILS सिस्टम बारामती में नहीं है, बहुत सारी चर्चा वहाँ पे हुई थी। अरे ILS बारामती में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुंबई में ILS होते हुए भी ये एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ। तो ILS नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाती है। ये टेक्निकली अगर आप देखो तो वैसे नेसेसरी नहीं है, अगर पायलट इज अ गुड पायलट एंड एक्सपीरियंस्ड पायलट। तो ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था। आगे लो। अभी 2 साल में 2023 से लेके अब तक उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं हुआ था। ब्लैक बॉक्स में क्या आया था, कैसे हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अजीत दादा का होने के बाद फिर ये DGCA के माध्यम से वहाँ पे एक न्यूज़ दी गई सितंबर में जो एक्सीडेंट हुआ था उसका रिपोर्ट बहुत जल्द वहाँ पे दिया जाएगा। मतलब फिर हमारा कहना है, अगर ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर होता और ये जो VSR का एयरक्राफ्ट, वो भी लेयर जेट एक्सीडेंट किसके कारण हुआ, वो इन्फॉर्मेशन अगर पहले हमारे पास होती तो शायद अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं होता। देखो, हम अजीत दादा हमारे में नहीं है, वो तो मुद्दा हम ले ही रहे, उसके बारे में इमोशनल है ही। लेकिन आज भी अगर आप देखो तो हमारे CM हो, हमारे मंत्री हो, हमारे नेता है, या कुछ दिन पहले हमको पता चला था सचिन तेंदुलकर जी दिल्ली आए थे, उन्होंने भी VSR का एयरक्राफ्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया था। इसलिए हम सबका कहना, मतलब फैमिली का कहना और हमारा कहना है कि VSR जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है, बहुत गलत तरीके से मेंटेन करता है। इसके कारण मुंबई का 2023 का एक्सीडेंट हुआ, अजीत दादा का एक्सीडेंट हुआ। इसलिए हमारा कहना है, विनती है सबको, VSR का कोई भी प्लेन वहाँ पे कितनी भी इमरजेंसी हो, आप प्लीज इस्तेमाल न करें। तो ये रिपोर्ट आता तो हमारे दादा आज रहते, ऐसे हम सबको लगता है। अभी EASA यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने ये जो VSR का जो ऑपरेटर है उसको ये भेजा था कि बाबा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ 2023 का, वो हमको बताओ। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी, लेकिन कुछ भी एक भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे न DGCA के माध्यम से न VSR के माध्यम से वहाँ पे दी थी। तो EASA, क्योंकि ये बहुत बड़े एयरक्राफ्ट है, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर को लेके मैं खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी बारामती एयरपोर्ट पे वहाँ पे लैंड हुआ, तो वो भी VSR का था। वो जो साइज का एयरक्राफ्ट है, लेगेसी हो या ग्लोबल हो, ये सब एयरक्राफ्ट यूरोप तक जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने इंफॉर्मेशन न आने के कारण इसका जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर का जो ऑथराइजेशन था वो कैंसिल किया था। आगे लो। आगे ये सब विषय EASA ने एक्शन लेके ये पूरा जो उसका लाइसेंस था वो कैंसिल किया। और कल जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन कल मैंने नहीं दी थी, लेकिन कल कुछ बहुत सारे सीनियर जो पत्रकार है जो एविएशन सेक्टर हैंडल करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये विषय जो रिपोर्ट है वो यूरोपियन एजेंसी को DGCA के माध्यम से कुछ दिन पहले देने वाले, कुछ मतलब 15-20 दिन पहले देने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको जानबूझ के रुकाया। वो व्यक्ति कौन, ये आगे जाके शायद हमको पता चले, लेकिन दैट पर्सन इज अ पॉलिटिकल पर्सन, दैट टू एक्सपीरियंस इन एविएशन। आगे
अभी ये जो सीरियस इशू इमर्ज, जैसे कि हमने पायलट से बात किया जो बहुत पहले काम करते थे, कुछ अभी काम कर रहे या अधिकारी थे, उनके फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, मतलब 12 घंटा अगर ड्यूटी होने के बाद 12 घंटे का गैप चाहिए, वो इस कंपनी फॉलो नहीं करती। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि कॉकपिट के जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट में बंद होता है। हमारी मांगनी है कि इस एयरक्राफ्ट का डेटा हमको चाहिए, उसी के पहले जो भी वीआईपी फ्लाइंग होती है उसका डेटा डीजीसीए ने वीएसआर के माध्यम से वहाँ पे मांगना चाहिए। चेकलिस्ट टेकलॉग ये मेंटेन नहीं करते, मतलब जो भी प्लेन फ्लाई होने के पहले उसका हेल्थ देखा जाता है वो देखा नहीं जाता, उसका अलग अलग कारण वहाँ पे हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। और ड्यू टू वीएसआर एम्फोसिस ऑन कॉस्ट कटिंग, मतलब क्या कि ठीक है एक आध पार्ट है वो अगर उसका लाइफ होता है, देखो हेलीकॉप्टर में 2500 या 2000 घंटे का लाइफ होता है, उसका इंजन 2200 या 2500 जो भी लाइफ होता है, उसके बाद कितना भी अच्छा हो वो बदलना पड़ता है, 6-7 करोड़ का खर्चा होता है। वैसे प्लेन का भी हो तो एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीज़ें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का, बहुत सारा मैनिपुलेशन वहाँ पे होता था। और हमको जो पता चला है, एक डीजीसीए के लोग ये सिंह के मित्र होने के कारण उसका लाइजनिंग इस एजेंसी के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अच्छा था, ऐसे हम सबको पता चला है। आगे अभी गो अराउंड, एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था, दूसरी बात एक आप जान लो, इधर देखो ये यहाँ से बारामती आने वाला था अजीत दादा को लेके और विदीप जाधव का नाम वहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब एटीसी से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान ये डीजीसीए कहता है, उसका रूल बुक है 5000 मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है। यहाँ पे निकलते वक्त भी जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक आध प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था, तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे पढ़ते हैं। आगे अभी देखो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज़ जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, वो जो दबाना पड़ता है वो को पायलट दबाती है या दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहाँ पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहाँ पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या ये हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है, वहाँ पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहाँ पे सुनाई नहीं दी जो सुनाई देनी चाहिए थी। दैट मीन्स दैट स्टॉल वार्निंग सिस्टम वाज ऑफ। आगे अभी दूसरा ये है, ये बंदा मराठी में बात करता है, मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जनरली प्लेन एक हाइट पे होता है, लेकिन उस दिन का जो प्लेन है लोगों के हिसाब से वहाँ का जो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप मंदिर देखो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो उनका कहना था ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि ये अभी शायद वो जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल है उसको वो टच होगा। अभी ये टच होने के सिस्टम को क्या कहते हैं, वो EGPWS एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, मतलब एक लेवल के नीचे वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, ऐसा कुछ उनका एक वार्निंग होता है, वो भी बंद था, वो भी पीटीटी में अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो आगे तो अभी हेवी बेस मेंटेनेंस, अभी सीरियस इशू हेवी बेस मेंटेनेंस के बारे में हमको पता चाहिए कि वहाँ पे कौन व्यक्ति है, कैसे है। जैसे कि MRO होते हैं, इस भारत में 2 मेन MROs है, और ये VSR जो कंपनी है उसका खुद का इनबिल्ट और इंडोर या खुद का एक अलग सा MRO वहाँ पे था, मतलब जो मेंटेनेंस वहाँ पे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स हमको चाहिए।
एमआरओ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटेनेंस किया जाता है प्लेन का, कोई भी बड़े प्लेन का, भारत में 2 ही एमआरओज है और उसमें से एक एमआरओ शायद पास में वो प्रफुल्ल जी पटेल साहब का वहाँ पे था। अभी उसमें क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी के साथ अगर आप देखो तो एमआरओ, जैसे एमआरओ के लोग अगर इधर से निकाल दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे एमआरओ में जा सकते हैं, जैसे मीडिया में होता है, इस मीडिया से गए तो दूसरे मीडिया में जाते हैं। तो ये जो वीएसआर का जो एमआरओ था या मेंटेनेंस का हब था, वहाँ पे कौन कौन काम कर रहा था, उसके पहले वो कहाँ पे काम कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहाँ पे होना चाहिए, ऐसे हम सबकी वहाँ पे मांग है। और उसके बाद लीगल अथॉरिटी, ये सब कुछ विषय जो यहाँ पे दिए हैं उसकी डिटेल्स हम सबको वहाँ पे चाहिए आगे। अभी दूसरी बात जो वीएसआर के बारे में बताया गया है कि वीएसआर में बहुत सारे बात एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो अलाउड नहीं है, वो भी वहाँ पे विमान के पीछे जो एक बैग रखने की जगह थी वहाँ पे इलीगली वहाँ पे रखा जाता था। इसलिए हमको जो हैंगर होता है या हैंगर के बाहर का जो सीसीटीवी होता है, जो भी वीएसआर के जहाँ पे भी प्लेन लैंड हुए, मेंटेन हुए, हैंगर है या उनका एमआरओ है, वहाँ के सब डिटेल्स हमको वहाँ पे चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। क्योंकि अगर एडिशनल टैंक विदाउट परमिशन अगर आप रखोगे कॉस्ट कटिंग के माध्यम से, जो हमको एक्स पायलट ने वहाँ पे बताया कि इनको एक आदत थी ऐसे इलीगल विषय करने की, तो एट दैट हाइट फॉर दैट प्लेन दैट एक्स्ट्रा फ्यूल विच यू आर कैरिंग इन द कैन एक्ट्स लाइक अ बॉम्ब, दैट नीड्स टू बी नोटेड। आगे अभी देखो हमको क्या जो क्लियरेंस इंजीनियर है, ऑफिसर है, उसके इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए, क्वालिटी इंजीनियर की इंक्वायरी, मेंटेनेंस इंजीनियर की इंक्वायरी, ईएसए ने जो